A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Can everybody just say A'udhu billahi minash shaitanir rajim, please? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillah, alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seema, you want the talk in English or Urdu? Oh. Whichever one you say. So what do you all prefer? So I start. अभी मेरी उर्दू में वैसे ही बहुत सारी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ जुड़े हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी बहुत प्यारी शारमीन जो हैं वो हमारे दरमियान से मूव होके कहीं और जा रही हैं और इतने साल दुबई में रहने के बाद तो यू विल ऑल मिस हर। स्पेशली मेरे लिए तो खैर इट्स अ बिग डील बिकॉज मैंने इनके सिर्फ शारमीन के घर में मैंने तकरीबन 18 से ऊपर साल दर्स दिया है रेगुलर, एंड उसी के घर में दर्स देके we completed the Quran, alhamdulillah. And those sisters were with me right from the beginning when I started the tafsir of Quran. It took me around 22 years to complete, 21 years maybe, to complete the Quran, alhamdulillah. And some of them are still here with us, mashallah. Mehreen hai aur Saadiya hai, ya alhamdulillah. So we have been together for very, very long time. और शारमीन के घर में alone, because पहले रुमा के घर से स्टार्ट हुआ था, फिर रुमा के घर से नसीम के घर में शिफ्ट हुआ, फिर नसीम के घर से क्योंकि घर शिफ्ट हुए इन लोगों के, इस वजह से हमारा दर्स शिफ्ट हुआ था। फिर शारमीन के घर में जब शिफ्ट हुआ तो even when she shifted to villa, it shifted along with her and it continued in her home until we completed the Quran. And I'm doing now the Sira classes, which is still continuing. और आज तक भी मैं यही उस दिन भी बता रही थी कि it's still known as Sharmeen's classes because that was the maximum number of years we did it in Sharmeen's house. So now that she's leaving and we have just got together here, so Seema asked me to give a talk, and I thought because it's the month of Zulhijjah and सारे forwards आ रहे हैं, I think सैकड़ों forwards आ रहे हैं क्योंकि अब तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है and you don't have to tell people basic सबको पता चल जाता है because इतने फॉरवर्ड्स आते हैं कि you're bound to think इतनी बार पढ़ लिया, पता है कि अस्कार करना है। और ये 10 दिन जो हैं ज़ुल्हिज्जा के, they are the best of the days in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. No other day can compare to these 10 days, not even in Ramadan. Any of the days will compare with these 10 days. और अगर इन 10 दिनों में जो हम नेकियां करेंगे, अस्कार करेंगे, चैरिटी देंगे, कराबतदार रिश्तेदारों के साथ रिश्ते निभाएंगे, लोग जिन्होंने हमें दुखाया उन्हें माफ कर देंगे, और जो कुछ भी हम इस वक्त नेक अमाल करेंगे, those will be even better than taking part in the battlefield in jihad, because you get Jannah against what you do in these 10 days. क्योंकि रमजान में भी हमें नहीं पता कौन सी वाली रात है, लेकिन ये तो हमें बता दिया कि कौन से वाले दिन। ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में 9 दिन जो है वो हमें, हमारे पास तो सिर्फ 9 ही दिन होते हैं ना, 10वां दिन तो ईद का दिन हो जाता है, लेकिन these are the best days in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. और यहाँ तक तो I'm sure कि सबको पता है, इसलिए क्योंकि I told you that everybody is reading everything about it. तो मैंने सोचा कि हम हमेशा यही बात करते हैं नेक अमाल की और कितनी नेकियां हम कर लेंगे, और नेकियों को भी अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन किया है इन सूरह आले इमरान, जिसमें अल्लाह ने डिफाइन किया कि नेकी क्या है, और उसे आयतुल बिर कहते हैं, और उसको पूरा अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन करके खुद एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ से एक फ्रेज ले रही हूँ फ्रॉम सूरह कहफ, जिसमें अल बाक़ियातुस सालिहात का जिक्र है। तो व्हाट आर बाक़ियातुस सालिहात, जो अल्लाह के पास है, इंदा रब्बहू, क्या है वो बाक़ियातुस सालिहात? ये वो अमल है, अमल सालेह हैं जो हमेशा बाकी रहें। That's why they are called the बाक़ियातुस सालिहात।
ठीक है। सो जब हमको तकलीफ होती है, जब हम इमोशनल हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कोई वैक्यूम आ जाती है, जब हमें कोई कलेमिटी मुसीबत आती पड़ती है हमारे ऊपर, उस वक्त हमारे पास ये बाकियात सालिहात होते हैं जिनको हमें होल्ड ऑन करके रखना होता है, क्योंकि they will remain even at the time when we need it the most. So what are these बाकियात सालिहात? सालिहात are good deeds, सालेह अमल सालेह से है सालिहात, और बाकियात आपको पता है उर्दू में वर्ड है बाकी, वो अमाल जो आपके करने के बाद, आपके इवन गुजरने के बाद बाकी रह जाए, तो इसीलिए इनको बाकियात सालिहात कहा है। ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह हूद में कहता है, इंडीड गुड डीड्स डू अवे विद मिसडीड्स, तो नेक आमाल बुरे आमाल को धो देते हैं, साफ कर देते हैं। तो ऐसे नेक अमाल करो जो आपके बुरे आमाल को धो दे। ठीक है। अब बाकियात का एक बहुत ही ब्यूटीफुल पहलू ये है कि अल बाकी अल्लाह का नाम है। इट्स वन ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अल बाकी, क्योंकि वो हमेशा रहेगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा फिर भी वो बाकी रहेगा। सो ही इज अल बाकी। And there will remain the face of your Lord, owner of majesty and honor. अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ना सूरह रहमान में, कुछ अगर रह जाएगा तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला सूरह कहफ में क्या कहता है? अल मालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात। सुभान अल्लाह, कहाँ से बात शुरू कर रहा है अल्लाह? सबसे पहले जो हमारी वीकनेस है ना, उससे स्टार्ट कर रहा है जुमला। अल मालु वल बनून, वेल्थ एंड चिल्ड्रन, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद। ओके, मेन थिंग इज these are the adornments, and Allah says कि जीनतुल हयातिद दुनिया, ये जीनत है इस दुनिया की जिंदगी की। इस हयात दुनिया की जीनतें क्या हैं? माल और औलाद। हम सबसे ज्यादा किस चीज को शो करते हैं? अपने औलाद को और अपने माल को। तो ये दो चीजें हैं। मगर जो बहुत एंड्योरिंग यानी बाकी रहने वाले आमाल हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह के पास हैं, और वो इनसे बेहतर है, इस माल और औलाद से बेहतर है। ठीक है। जो अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह कहफ में कहता है। जब हम जानते हैं कि जब एक इंसान गुजर जाता है, दुनिया से चला जाता है, और जब उसको कब्र में जाके डालते हैं, तो इतनी सारी चीजें उसके साथ गुजर जाती हैं, उसके रिश्तेदार भी, उसकी औलाद, उसका माल भी, सभी। लेकिन उसके साथ सिर्फ एक चीज रह जाती है, बाकी सब चले जाते हैं। सिर्फ उसके अमाल रह जाते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। कुछ भी उसके साथ नहीं रहता, कुछ भी हमारे साथ जाएगा नहीं। मैं कितना भी क्लेम कर लूं, ये मेरी औलाद है, ये मेरे बहन भाई, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा फला है, ये भला है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरा जेवर है, मेरा पैसा, ये सब यही रह जाए, कुछ भी मेरा नहीं है। वो एक शीट में लपेट कर उसी खड्डे में डाल दिया जाएगा जिस खड्डे में सब डाले जाते हैं, विदाउट एनी सुभान अल्लाह। जो सहाबी लहद में डाल रहे थे फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को, तो उन्होंने पुकार कर कब्र से कहा, ए कब्र तैयार हो जा, वेलकम करने के लिए मैं अपने हबीब की शहजादी ला रहा। कब्र में से आवाज आई, मैं नहीं जानता तू किसे ला रहा, जो अमल करेगी वैसा सुनो। कब्र को अलग इंस्ट्रक्शन है अल्लाह की तरफ से, वो नहीं पहचानती कौन कौन आ रहा है, तुम कौन हो, किसके क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो अमल लाओगे उस हिसाब से बेशक तुम्हारे साथ सुनो। सुभान अल्लाह। So the enduring good deeds, they are better in the eyes of Allah, rather than you waste your time in trying to accumulate a lot of dunya. So Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say, whatever you are, of course you need your aulad, you need your mal, fine.
but don't put all your focus there. Use it as a means to the greater reward. Use your aulad for the greater reward. Use your mal for the greater reward. Use it. You need it. औलाद भी तो जब आप नेक छोड़ के जाएंगे तो वो आपके लिए सदका जारिया होगी ना, वो भी तो बाकियात और सालिहात में आ जाएगी। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उनको कितना नेक बनाते हो, कितना सिखाते हो, फिर वो आपके काम आएगा। अगर वो किसी और से सीख के बन जाएगा तो फिर वो उसके काम आएगा, वो उसके अमल साले हो जाएगा, आपका नहीं। So whoever would hope for the meeting with his Lord, let him do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है सूरह कहफ में कि ठीक है, अगर तुमको ये अमल कमाना है तो फिर तुम पूरे के पूरे अल्लाह के ताबे हो जाओ, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि there's a conditional clause used in this ayah. Okay, if you want to meet Allah in the hereafter, if you want to meet Allah in the hereafter, then you should do two things. What are the two things? Do good deeds and do not commit the blunder of associating anybody with Allah subhanahu wa ta'ala. Do not commit shirk. Okay? So whatever you do for the sake of Allah. The things that you do for the sake of people or for each other, they will be left here in dunya. They won't be counted, they won't be written. They will be written and removed, wiped out. You may say, I did so many deeds in dunya, but the angels may report that there are just few deeds showing here. वो बंदा आके कहेगा पर मैंने तो बहुत सारे अमल किए, शादी की, बीवी बच्चे संभाले, या औरत कहेगी मैंने भी शादी की, शोहर और ससुराल संभाला, बच्चों को बड़ा किया, मैंने ये किया वो किया, इतनी नमाजें पढ़ी, इतने वो इबादतें की, इतनी चैरिटीज दी, क्यों नहीं है मेरे खाते में कुछ लिखा हुआ? तो उसे बताया जाएगा तुमने किसके लिए किया था। While doing those deeds, did you think of Allah? Did you do it for Allah? Or you did it for something else? If you did it for somebody else or something else, so it's been lost. Whatever you did for Allah subhanahu wa ta'ala, that will show here today in the book of deeds. Not everything. आपके नेक अमल आपने किए, आपको नेकी का बदला मैंने दुनिया में दे दिया। आपने दुनिया के लिए किया था, दुनिया में मिल गया। यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि you didn't do it for me. When you were making food for your husband, did you think of me? When you were raising your children, did you think of me? When you were wearing your clothes, did you think of me? When you did things for other people, did you think of me? When you thought of me, those are the amal which are baqiyat salihat में लिखे जा चुके हैं, क्योंकि वो आपने अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। और अल्लाह ताला बताता है सूरत अल-आला में भी कि और तुम्हारे लिए आखिरत दुनिया से बेहतर। कहीं ये ना हो कि तुम दुनिया में इतने उलझ जाओ कि भूल ही जाओ कि आखिरत के लिए भी कुछ कमाना, कुछ रखना, कुछ काम करना बाकी है। हम एक्सपेट्रिएट्स हैं यहाँ पर और हम कितना कुछ अपने लिए जमा करते रहते हैं। मैंने कई बार ये मेंशन किया है, कितने लोगों को मैंने देखा है कि सारी उम्र लगाते हैं यहाँ से यहाँ पे जैसी भी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जमा करते रहते हैं। अपना घर कहीं जहां भी रहते हैं वहां बनाते रहते हैं, बड़ा घर, उसको फिर फर्निश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब तक जाने का टाइम आता है, या तो वो घर इतना बड़ा बन चुका होता है, बच्चे सब शादी करके कहीं इधर उधर चले गए होते हैं, they don't need such a house, they can't enjoy the house, in fact it becomes a burden on them, और या वो उससे पहले गुजर जाते हैं, they never get to even live in that house। तो क्या हुआ? इतनी मेहनत, फोकस जहां पे करी, वो तो आपके हाथ कुछ लगा ही नहीं, you didn't get anything। So isn't it better for you to do something that you will get it there? What will you get there? मुझे सारी जिंदगी मैंने वो घर बनाने में लगा दिया, अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। There is nothing, you didn't send anything up there। और सुभान अल्लाह, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक बार, नॉट जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से, एक सहाबी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बुला के पूछा था, बताओ तुम क्या कमाते हो, क्या क्या कमा लिया अब तक? तो उसने बताया कि मेरे पास एक जमीन है, एक दुकान है और एक खेत है,
एक बाग भी है, मेरा अपना घर भी है, 2 ऊंट भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखकर कहा, तुम तो अपने वारिसों का माल गिनवा रहे हो, तुमने क्या कमाया? तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने कमाया है। सर हाँ, लेकिन अगर तुम अभी मर गए तो ये किसका है सब कुछ? उसने कहा, हाँ वारिसों का। तो तुम तो मुझे वारिसों का माल गिनवा रहे हो, तुमने क्या कमाया? तो वो समझा ही नहीं। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा, जो तुम खर्च चुके हो वो तुम कमा चुके हो, बाकी सब तुम्हारे वारिसों का है, अब बताओ क्या कमाया? तब वो सोचकर कहने लगा, हाँ मैंने फला को सदका दिया था, मैंने अपनी ज़कात दी थी, हाँ ये कमाया था, बस इतने, बाकी सब वारिसों का माल है। आज आप गुजर जाओ तो किसका है? आपके साथ क्या जा रहा है? आपको तो ये बताना है कि आपने वहां के लिए क्या कमाया। हम हमेशा दुनिया का जवाब देते हैं, क्या क्या कमा लिया हम। ठीक है। सो सुभान अल्लाह। तो बाकियात सालिहात के लिए आपको वो अमाल करने हैं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द आखिरा। This is the crux of the matter. We have to make investment for the akhirah. So what did you invest in the akhirah? This is what we all have to think about it. Okay. So the conclusion, if I make of a simple conclusion of this, is al-baqiyatu salihat वो अमाल हैं जो हमेशा रहेंगे या जिनका अजर चलता रहेगा। 5 वक्त की नमाज आपकी बाक़ियात सालिहात, उसका अजर लिखा जाएगा। अगेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले नमाज से पहले, क्योंकि कुछ बहनें बाद में पहुंची, तो मैं रिपीट कर दूं, नमाजें आप जो पढ़ते हैं उसका पूरा पूरा अजर आपको नहीं मिलता, कुछ मिलता है, बाकी सब चोर ले जाता है चोरी करके। जो आप जिस जिस टाइम पे आप दुनिया का सोचते हैं वो टाइम आपका माइनस होता जाता है आपकी नमाज में से। जो नमाज में आप फोकस से अल्लाह को सोचते हो सिर्फ वही काउंट होता है। नमाज को इसीलिए जिहाद कहा, नमाज भी एक जिहाद है। Constantly you have to fight with that jinn and stop him from giving you whispers and reminding you things, but he will remind you. That's his job, he's doing. Your job is to fight him. Fight your mind. खुशू पैदा करो, खुशू और खुदू अपने लाओ, that is your fight. So आपकी नमाज का भी पूरा पूरा अजर नहीं मिलता, इसलिए अपनी 5 डेली नमाजों को अच्छे से कायम करो। And sabr of the parents for the righteous child who dies during their lifetime and his parents seek the reward of Allah, that is a reward that will remain even in the hereafter. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बच्चा जब गुजर गया किसी का, वो बहुत रो रही थी, उसकी माँ भी और बाप भी बहुत अफसरदा था, and everybody was feeling sad for them, but रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील से कहा है कि इसके लिए घर बना दो जन्नत में और उस घर का नाम रखना बैतुल हम्द, कि इसने सब्र किया है और इसने मुझसे इसका अजर मांगा है, इसके लिए नथिंग लेस देन अ हाउस इन जन्नत, एंड दैट आल्सो अ प्रेज्ड हाउस इन जन्नत। तो ये है बाक़ियात सालिहात जो बाद में भी आपको मिलेगा। देन ऑफ कोर्स एज आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ुल हज्जा में, what's the best azkar? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. And it's good to put them together and say it so that you don't miss out on anything. So you can say Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. And of course, मैं तकबीरात के बारे में आपको इसके एंड में बता दूंगी ताकि that also gets clear. And saying La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. This is one of the keys of Jannah, because it keeps, and of course not, Allah subhanahu wa ta'ala ghafil dil की दुआ कबूल नहीं करता। तो अगर आप कोई रट्टा मार रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लिप सर्विस अल्लाह को कर रहे हैं, तो it's not acceptable. You have to say it from your heart. You have to understand what you're saying it. उसको समझ के करो. You have to remember you are speaking to Allah subhanahu wa ta'ala. You're asking something from the Lord of everything. Okay, look,
Just think about his majesty. You are in front of him. So what you're saying, you should know what you're saying. तो गफलत से नहीं बोले, दिल से बोले, समझ के बोले. जब आप कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी के पास ताकत कुव्वत है ही नहीं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी है ही नहीं मोर देन अल्लाह. सब कुछ मात है उसके सामने. उसकी ताकत, उसकी हिकमत, उसकी कुव्वत के आगे किसी की ताकत, किसी की कुव्वत नहीं चलेगी. So when you say that, you remind yourself everything is in his control. Nothing is out of his control. Everything is in his control, and only he can make things happen. If he does not permit, it cannot happen. Same way, if he does not permit the shaitan to go and hit Ayub alayhi salam's house, or to burn his farm, or to kill his children, it cannot happen. Allah permitted it. Remember that. And why these stories are given to us? For us to understand that Allah has permitted things that have happened in my life, your life, her life, this one's life, that one's life. So don't start thinking, how did it happen to this one's life? Because Allah is the controller. He's letting it happen for a reason which he knows. Either it's a test or a punishment. Either way, it cannot happen unless Allah wills. So when you know, you have to return back to Allah, make tawbah, do astaghfar, return back to Allah, and Allah will give you the reward like he gave to Ayub alayhi salam. So whenever you think, ये कैसे हुआ, वो कैसा हुआ, तो नूह अलैहि सलाम जैसा नबी जिसने 1000 साल से ऊपर दावा का काम किया, अल्लाह की खिदमत की, उसका अपना बेटा क्यों नहीं उससे कंट्रोल हुआ? अल्लाह की मर्जी. Can we ask this question? क्या बात है, नूह अलैहि सलाम ने तो 1000 साल से ऊपर करीब कितनी खिदमत की, दावा किया, पर वो एक बेटा उनका नहीं माना उनकी बात, तो गर्क कर दिया गया. अब हम पूछ सकते हैं कि भाई वो तो मगर नबी का बेटा था, वो भी ऐसा वैसा नबी में, कितना जलीलुल कदर पैगंबर था जिसने कितने साल खिदमत की अल्लाह की. सुभान अल्लाह. And then so you should remember, everything is happening with the will of Allah. What we have to do is look into ourselves. Have I committed sins? Am I doing something to anger Allah? Ask for forgiveness anyway. Even if not, ask for forgiveness and thank Allah for what you are left with. Rather than complain, लो जी सब छोड़ के चले गए, मैं तो अकेली हो गई, मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, मेरा तो बच्चा बीमार हो गया, मेरा तो शौहर भाग गया, मेरी तो पड़ोसन बुरी है, मेरी सास खराब है. Forget it. Who's what? What is good in your life counts the blessings. And there's always plenty. But shaitan comes to just focus and enhance what is lost. And it looks huge. What you have looks very little. Okay? So you have to fight that with shaitan all the time. And also, when you like something, when you appreciate something, make sure you say Tabarakallah. This goes as a Baqiyatus Salihat. When you say Tabarakallah, जो बरकत आपकी मुझे नजर आ रही है, if I say Hadiya is looking beautiful and I say Tabarakallah, may Allah keep the barakah going for her. It should not be reduced just because my eyes have gone into her. Otherwise, 2 तीर चले गए. मैंने तो प्यार से कहे, लेकिन मैंने बहुत ही प्यार से कह दी, तो तीर तो निकल गए. ठीक है, उस तीर को बचाने के लिए खुद बचाव करो, तबारकल्लाह, so that it remains. ये बाकियात में आ जाता है, it remains. Seeking forgiveness by astaghfirullah. Okay, just saying I seek Allah's forgiveness. Astaghfirullah is enough when you are saying I am seeking forgiveness from Allah. Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayh, और सारे गुनाहों की, and I return to Allah. ठीक है, this is also among बाकियातुस सालिहात, because अगर अल्लाह चाहेगा तो वो आपके गुनाह मिटा देगा, तो वो बाकी ही नहीं रहेंगे. So this is one of the बाकियातुस सालिहात. Saying sallallahu alaihi wasallam where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's name is taken, that's also बाकियातुस सालिहात, because आपके 10 अजर लिखे जा चुके, आपको बाकी मिलेंगे बाद में, तो आपके लिखे जा चुके, और जो भी इसके अजर इससे कनेक्टेड हैं वो सब बाकियातुस सालिहात. रोजा रखना रमजान के,
जो हम 30 रोजे रखते हैं और जो नफली रोजे रखते हैं, रोजा रखना बाय इटसेल्फ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बाकियात सालिहात, बिकॉज ये एक वो अमल है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है ये मेरे लिए है, मैं डिसाइड करूंगा किसको कितना वे करके देना है, फास्टिंग इज फॉर मी, ठीक है। फिर हज करना, क्योंकि हज इज वन ऑफ द अरकान, गोइंग फॉर हज। आपको पता है कि इंसान अगर अगर आपका हज कबूल हो गया तो आपके तो पूरे गुनाह माफ हो गए ना, तो बाकियात सालिहात में आ गए ना, खत्म, इट विल रिमेन, यू अगेन स्टार्ट अफ्रेश। सो आपके तो सारे बाकियात सालिहात में। गिविंग सदका, जो भी आप चैरिटी करते हैं, इट रिमेन्स, इट कैरीज ऑन, नॉट जस्ट सदका जारिया, इवन द सदका इट गोज ऑन। फ्रीइंग अ स्लेव, और आप अभी गुलाम तो नहीं है जिनको हम आजाद कर सकें, लेकिन यू कैन फ्री द प्रिजनर्स who have finished their terms and they need to go back and there are nobody to support them, ठीक है। And just for your information, I have been going to the prisons here, and many times I arrange these people who have nobody to send them home. We arrange the ticket one way for them to just go home, because they will say नियाबा हो गया, सब हो गया, but मैडम हम बैठे हैं क्योंकि हमारे पास टिकट के पैसे नहीं, क्योंकि they have very different cases there, there are various cases। तो ऐसे लोगों को अगर आप उनकी गर्दनें छुड़ाएं, और गर्दनें छुड़ाने में किसी कर्जदार के भी गर्दन आप छुड़ा सकती हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीइंग स्लेव में आ जाता है सब, गर्दनें छुड़ाना। उसमें ये कि अगर किसी ने किसी जायज चीज की वजह से अगर लोन लिया है और आपको पता है उनकी सिचुएशन, जैसे किसी ने इलाज के लिए लिया, ठीक है, या किसी ने किसी ऐसी तकलीफ के लिए लिया है जिसमें दे हैड नो चॉइस, उनको भी आप निकाल सकते हैं उनके डेट में से थ्रू योर ज़का मनी आल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड गर्दन छुड़ाना, दैट इज कॉल्ड फ्रीइंग ऑफ स्लेव, एंड दैट इज आल्सो बाकियात सालिहात। एंड जिहाद ऑफ कोर्स इट्स अमंग द बाकियात सालिहात। And the most difficult one, maintaining ties, Sulah Rahmi, that comes under Baqiyat Salih, most difficult, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने रिश्ते निभाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। See, straight away, that is the consequence of maintaining relationship. So a sahabi asked कि ये मुझे बुलाता है मैं इसको बुलाऊं, ये मुझे खिलाता है मैं इसको खिलाऊं, ये मुझे गिफ्ट देता है मैं इसको गिफ्ट दूं, तो सही है ना, ये मुझे सलाम करता है मैं इसको सलाम करता हूँ। He said नहीं, ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, that's not maintaining ties. Maintaining ties is, सुलह रहमी उसको कहते हैं कि ये मुझे नहीं बुलाता मैं इसे बुलाऊं, ये सलाम नहीं करता मैं इसको सलाम करूंगा, ये मुझे मेरे घर नहीं आता पर मैं इसकी खबर रखूं, इसके घर चला जाए, ये मुझे देता दिलाता नहीं है लेकिन मैं इसको देता दिलाता, इसको कहते हैं मेंटेनिंग टाइज। If you can do that, then you will have the increase in your life as well as in your wealth. Okay, तुम्हारी रिस्क भी इजाफा करेगी, तुम्हारी उम्र भी दराज होगी। So this is among the Baqiyatus Salihat, because it has consequences which are long lasting. Subhanallah. Yeah, then of course then जन्नत के दरवाजे बंद हैं आपके ऊपर अगर आपने किसी के साथ क़तअ रहमी की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सॉरी मैं क्वेश्चन बता दूं कि इफ़त ने पूछा कि जो मेंटेन टाइम नहीं करते उनके लिए क्या है, तो जो लोग सुलह रहमी नहीं करते वो क़तअ रहमी करते हैं, यानी कट करते हैं रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दोस्त क़तई will never enter paradise, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हैं। और जो सलाम का जवाब ना दे उसका जवाब फरिश्ते देते हैं, उस सलाम का जवाब, और उसे कोसते हैं जिसने जवाब नहीं दिया, तो उसकी जिंदगी कम होती जाती है because he gets cursed for that. So,
Mainly it is for rishtedar, because when it is sulah rahmi, it is specially those who are rahim se rishte bane हुए हैं ना, जैसे जो खून के रिश्ते जिसे कहते हैं. पर जनरली अगर कोई खून के रिश्ते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई सपोजिंग दोस्त अहबाब है, आपसे मिलते जुलते थे, अब आप उनसे कहीं मिल रही, आप ठीक है, यू कीप अ डिस्टेंस इफ दे आर hurtful people. You don't have to go and stay in their faces and get punched. बैल सींग मार नहीं करने की जरूरत है, लेकिन you keep a distance from them. You are allowed to keep a distance from them. But अब यहाँ supposing एक बहन आती है and she is very bad or mean or something to you, you are supposed to still give salam to her. If you're shaking hands with everybody, shake hands with her also. Be polite, make her sit, speak to her, ask her how you are. That's all. You have to do that. Then you have maintained the relationship. She's not good to you, but you've been good to her. That's all. That is all that is required. Not too much of anything, but you need to be polite, courteous to people who are hurtful. Keep a distance, but you can't cut it off. कि मैं इससे बात ही नहीं करूंगी, इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं. She's offended me so much. मैं तो इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं. I don't want to ever see her again. Those kind of things you can't do with anybody. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सिर्फ 3 दिन तक नहीं बात किए रह सकता है, उससे ज्यादा वो कतई कहलाएगा. उसमें खून के रिश्ते की बात नहीं हुई. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अगर नाराज है तो सिर्फ 3 दिन की इजाजत है, and that is just for you to cool down and chill about this whole thing and then get back to normal. 4th day you've got to be normal. It's like that. Okay, so ये मैंने आपको totally पूरा बता दिया. अगर कुछ और सवाल हो तो पूछ लेना, मसला नहीं है. बिल्कुल कट करना मना है, किसी से भी आप रिश्ते तोड़ नहीं सकते. आप रिश्तों, बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं, खैर ख्वाह नहीं होते, और हर खानदान में आपको ऐसे मिलेंगे. अल्लाह ने बिठा रखे हैं वो हमारे पीछे, ठीक है. खास वो काम करते हैं वो वाले जो हमारे लिए हमें चैलेंज करते हैं, हमारे ईमान को चैलेंज करते हैं. बट यू शुड नो हाउ टू डील विद देम. ऐसे दोस्त भी मिलेंगे, ऐसे रिश्तेदार भी मिलेंगे, ऐसे ससुराली मिलेंगे, ऐसे मैके में मिलेंगे. कभी माँ चैलेंज बन जाती, कभी औलाद चैलेंज बन जाती, कभी दोस्त चैलेंज बन जाते. ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, हर घर में हर खानदान में मिलेंगे. बट हाउ यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड. सलाम दुआ जो करता है आप सलाम दुआ करें. किसी से मुंह फेरने की जरूरत नहीं है, ना ही उनमें घुसने की जरूरत है, क्योंकि यू नो दे विल हर्ट यू. So you don't have to go and get hurt from them. You can just keep a distance, but you cannot cut off. The moment you cut off, you are a qat'i, और तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम है. qat'i पे तो जन्नत के दरवाजे बंद. So it's a very dangerous issue. ठीक है? So yes. But if you try meeting people, they really don't want. That is not your fault, because then you get ajr for even wanting to meet them. Even if like if I go to somebody's house and they don't welcome me or they don't open the door, I get double ajr because they have refused me. So I've been hurt, और every hurt के पीछे मेरे गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं, तो good for me. So take everything in a positive light. It's good for me. खैर है, no problem. ठीक है. तो ये है बाक़ियातुस सालिहात जिन पर हमें तवज्जो देनी है. If you want your to work for आखिरत, और अपनी आखिरत को आपको जमा करना है, वहां पर इन्वेस्ट करना है, these are the बाक़ियातुस सालिहात जो आपके सामने मैंने रखी हैं. इन पर तवज्जो दें, खूब इस पर तवज्जो दे के फोकस करें और इस पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको आखिरत में सब कुछ मिले. अस्कार तक की इतनी वैल्यू है कि among the deeds which is most liked by Allah subhanahu wa ta'ala is dhikr of Allah. सिर्फ जिक्र करते रहो अल्लाह का. जिक्र से अपनी जुबान को तर रखो. Not that I'm always doing dhikr, but sometimes when even non-Muslims, मैं कहीं गई थी कल, किसी शॉप पे किसी काउंटर पे खड़ी थी. मेरी आदत है कि मैं जो खरीदती हूँ उस पर मैं इस्तिखारा पढ़ती हूँ. Of course खरीदने के बाद ही पढ़ती हूँ, क्योंकि you're not supposed to do it when you are in two minds. When you've decided, you put it in your trolley, you reach the counter, you do your istikhara. So I did my. So she must have thought, वो हमेशा देखती मैं पढ़, मुझे कहती आप मेरे लिए भी दुआ कर दो. तो मेरा नाम शिल्पा है. ऐसे जी अच्छा ठीक है मैं दुआ कर दूँ.
उसने कहा तो मैंने उतर के फिर सबसे पहले यही दुआ की, अल्लाह इसको हिदायत देना, क्योंकि हर नॉन मुस्लिम को आपको ये दुआ देनी है। उसने कहा दुआ दो, इससे बड़ी दुआ और मैं क्या दे सकती थी कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देना शायद कि वो मुसलमान ही हो जाए। दूसरी है, उसका क्या नाम है, मनीषा नाम है, वो मुझे कह रही थी मुझे कोई शरिया के हिसाब से, एग्जैक्टली दिस व्हाट शी सेड, शरिया के हिसाब से ऐसी कोई दुआ बता दो जिससे मेरे काम आसान हो। आई टोल्ड हर, तुम्हें किसने कहा शरिया के हिसाब से दुआएं होती है? बिकॉज आई थॉट इसको किसी ने कुछ बोल दिया, बिकॉज शी इज नॉट अ मुस्लिम। एंड देन शी सेड नहीं, शरिया से इसलिए बोल रही हूँ, आई वांट द ऑथेंटिक वन। ओके, ऐसे समझ गई, समझ, मैं तुम्हें सुनना से दुआ बता दूंगी, तुम पढ़ना। मैंने कहा इसको भी सिखा दूंगी कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, पढ़ती रहे, अल्लाह तुझको हिदायत दे देगा, फिर तो खुद ही सब आसान हो जाएगा। यू नो, सुभान अल्लाह, योर जिक्र keeps you protected constantly, your askar will keep you protected। अपनी जुबान जिक्र से तर रखें, सबसे बड़ी अल्लाह की नजर में ये, and among the salah the most beloved salah अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस क़यामुल लैल। बस मांग लो उस वक्त उठकर अल्लाह से, जो भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, अल्लाह ताला देगा। और नहीं तो आपको पता है वो रिजर्व हो गई आपकी दुआ, जैसे मैंने कहा वो आपको दुआ आपकी चली गई, इट्स एक्सेप्टेड। हाउ इट विल कम टू यू, you have to wait and watch, because Allah knows better what you want। Subhanallah। So with this I just, can you ask Allah subhanahu wa ta'ala to please quickly do something? yeah, why not? Yeah. You can say, and still you have to wait and hope। Yeah, you can say, yeah, if you want something soon, you can say Allah I want to do this soon। Okay, you can say that Allah जल्द अज जल्द प्लीज उसको आफियत से मुझ तक पहुंचा और मुझे उस तक पहुंचा, जो भी चीज है आपकी, ठीक है, तो यू कैन से दैट। बट इफ इट टेक्स टाइम देन यू मस्ट आल्सो बिलीव दैट इट्स फॉर योर बेटरमेंट। ओके, दैट्स गुड फॉर यू। ठीक है, तो बस इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस आई कैन आंसर आफ्टर द दुआ इंशाल्लाह। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल करे, आप सबका यहाँ आना और हमारी सीमा का बहुत ही जेनरसली अपना दिल, अपना घर खोलना और हम सबको बुलाना, ये टॉक करवाना, शारमीन के लिए एक अलविदाई इतना सारा एहतमाम करना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। जो कुछ भी यहाँ कहा गया और सुना गया, जो कुछ इसमें से बेनिफिशियल था, फायदेमंद था, वो सब अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ताला उसके बदले में हमें खैर अता करे, दुनिया की और आखिरत की, और हमें शर से बचा दे दुनिया और आखिरत की। अगर कोई गलती या भूल चूक थी तो या मेरी कमजोरी है, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता करे, और या शैतान का फितना है, अल्लाह हमें शैतान के फितने से बचा के रखे। बस अल्लाह से दुआ है कि जहां भी शारमीन जाए, अल्लाह ताला इसके लिए तमाम तर आसानियां कर दे, इसका हर मरहला आसान कर दे। यहाँ से पैक करना, जाना, वहां पे सही जगह पे रहना, अच्छे लोगों में, सालेहीन में बसना, और अल्लाह ताला उसको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत के साथ हर चीज अता करे, और उसको दिली सुकून, सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, रिस्क रोजी में बरकत, अल्लाह ताला उसको सब कुछ अता करे। ये हमारी दिल से दुआ है शारमीन के लिए। और अल्लाह ताला इस घर में, सीमा के घर में भी, क्योंकि हम इस घर में जुड़े और अल्लाह का जिक्र हुआ, अल्लाह ताला इस घर में बरकतें दे, आफियत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, रिस्क और रोजी में बरकत दे, अल्लाह ताला नूर से भरा रखे इसको, ए रब्बुल आलमीन। अल्लाह कबूल करे इन सब चीजों को अल्लाह ताला, और ये सब जो है अल्लाह ताला सीमा के लिए उसके सदकात में और उसके हसनात में, स्पेशली इन जुल्हज्जा के दिनों में, इट्स वेरी मल्टीपल रिवॉर्ड्स फॉर हर, इंशाल्लाह उसको अल्लाह ताला उतने मल्टीपल रिवॉर्ड्स में इंशाल्लाह ऐड कर दे। हाँ, डेफिनेटली आमिर भाई की अम्मी जो है वो शी इज वेरी सिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको शफाए कामिला वाजिला अता कर दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां कर दे, और जो भी तकलीफ से वो गुजरे उसके बदले उनके गुनाहों को माफ कर दे, और उन पर ये सारी तकलीफें आसान कर दे। वाखिर दावाम अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ और कहना? हाँ, मेरा बहुत पुराना, मैंने ना काफी
उससे पहले एक और लोग पूरे शवाल में स्टार्ट की, हमारे सब छोटे छोटे बच्चे इतनी चीजें सीखी, हम लोगों को ऐसा बॉन्ड रखा था। समरा हुई, शामें हुई, रोमा हुई, फरजाना हुई, कितने लोग हैं, महरीन है, महरीन हुई, सादिया है, सादिया हुई, सबा सबा is from the beginning. था कि कहा जाता। और है ना, जैसे ना शामिल है खुरखुरूस, और है ना लविंग, मोस्ट लविंग, पता नहीं है ना, आई थिंक कभी मेरा खुशियों से मिले, and I love her and I love every one of you, माशाल्लाह से। Alhamdulillah. all have been in Alhamdulillah. अल्लाह ताला मुझे बस अच्छे लोगों से बात करके और सब में मोहब्बत रखे हम सब। आमीन आमीन आमीन। चलिए मैं ना ओके, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही वसल्लम। Barakallah feekum for listening to me.